Hello friends, welcome back. Let's start with unit number 7, direction sales. Are you enjoying videos? If you are enjoying videos, please comment in the comment box. If you are new or haven't subscribed the channel yet, please subscribe the channel and of course hit the like button. So let's start discussing direction sense. So before we start discussing questions, you must know few concepts related to directions. So how many main directions are there? There are four main directions, and whenever we draw it on the paper, so what should be the direction? So normally we draw plus sign on the paper. Normally we draw plus sign on the paper. So when we look at the paper, our right side is east. Our right side is east. So sunrise side is here. Our left side is west. So right, east, left, west. Down is south. Down is south. And up is north. So this is the pattern to draw on the paper. Right, east, left, west, down, south, up, north. These are four main directions. So whenever question is asked in the exam, we always assume that particular person or place at this position. Normally in the question is given, the person walks towards the east, the person walks towards the west, south, north, whatever may be given. So there is always question in mind, the person starts walking, but from where? The person starts walking from this center position. So it is always assumed that whenever a description is given in the question, we have to start here. So this is our starting point. Clear? Suppose the person is standing here. This boy is facing south. The boy is facing south. If the boy is facing south, so which is the back direction? Common sense है south का opposite आता है north. Person is facing south. So at the back there is a north. So what is the right and what is the left of this person? Oppose. This is the right hand of this boy and this is the left hand of this boy. Am I right? Right and left. So right and left. So if the person is facing towards the south, right side is west and left side is east. यही अगर उल्टा हो जाता, द पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, अगर हम इसको नॉर्थ फेसिंग करते तो राइट में आ जाती ईस्ट और लेफ्ट में आ जाती वेस्ट. गेटिंग इट? पक्का? सो अभी मोमेंट्स हम समझ लेते. देर आर टू मोमेंट्स, लेफ्ट मोमेंट एंड राइट मोमेंट. अभी लेफ्ट मोमेंट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. लेफ्ट मोमेंट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. जस्ट लुक एट हियर, 90 डिग्री लेफ्ट है, लेफ्ट है मतलब एंटी क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज. सो लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. इफ दिस बॉय इज मूविंग 90% इन द लेफ्ट, सो अगर ये 90 डिग्री में मूव हो रहा है तो इसका मतलब अभी इसका फेस कहा जाएगा? यस, टूवर्ड्स द ईस्ट. 90 डिग्री लेफ्ट टूवर्ड्स द ईस्ट. 90 degree right. Right movement means clockwise. Right movement means clockwise. So normally why we say clockwise? So whenever we think of the clock, so the clock moves normally in this direction. That is the right direction. So this is clockwise. So hands of the clock move in that direction. So that is called as a clockwise. And of course, opposite to that, that is called as anti-clockwise. So keep in mind, right means clockwise, left means anti-clockwise. Clear? So the person is now first 90 degree anti-clockwise, now 90 degree clockwise. So of course he will come to the same position facing towards south. Got it? Once again 90 degree clockwise. Once again 90 degree clockwise. Now facing towards west. 180 degree clockwise. 180 degree clockwise. So when we say 180 degree clockwise, it means exactly opposite. So west के opposite क्या है? East. चलो घुमाते इसको. Yes, facing towards east. So try to understand these main four directions. So in main four direction, what is the gap between two directions? Yes, 90,
टोटल यहां से अगर काउंट करें सो 180, सो 90 180, क्लियर है, 90 180। सो इस तरह से 90 90 ऐड करते जाओ, सो डायरेक्टली 360 पूरा होगा। सो डायरेक्शंस का जो गैप है मेन डायरेक्शंस के बीच में, इट इज 90 डिग्री। सो नंबर ऑफ टाइम्स अगर 90 डिग्री नहीं दिया है, सो दे विल से दैट राइट एंगल, they will say right angle. So when they will say right angle again means one and the same 90 degree. So instead of a 90 degree, if in the question the right angle is mentioned, you have to consider that right angle means 90 degree. Clear these four directions? Now there are four quadrilateral directions. Quadrilateral direction means directions between the main directions. So in English, it is easy to understand. Why? Because directions between north and east is called as northeast, south and east is called as southeast, south and west is called as southwest, north and west is called as northwest. So simple to keep in mind. Between north and east, northeast, between south and east, southeast, between south and west, southwest, between north and west, northwest. And we imagine the person at this place. Now the person is facing towards north. So every time 45 degree. So now we know this is 45 degree. If this person moves in the right direction, that is a clockwise direction 45, the facing towards northeast. ओरिजिनल पोजीशन से 90, यहां से 45, सो ओरिजिनल से फिर से 90। सो सब डायरेक्शंस में कितना गैप है? यस, 45 डिग्री का गैप है। सो नाउ टुवर्ड्स द ईस्ट, वंस अगेन 45 ऐड करते हैं। सो ओरिजिनल पोजीशन से हम कहां पे आ जाएंगे? अभी यहाँ पे आ जाएंगे। सो इट विल बिकम 135। वी आर टॉकिंग टोटल फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, देन कंप्लीट, सो इट विल बी 180। वंस अगेन 45 ऐड करते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, इट विल बी 225 डिग्री। यस, वन मोर टर्न। सो इफ वन मोर टर्न इज देयर, ओरिजिनल पोजीशन से अगर आप काउंट करते हो, यस, 270, क्लियर। वन मोर टर्न ओरिजिनल पोजीशन से, इफ यू आर काउंटिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, देन इट इज 315 एंड फाइनली ओरिजिनल पोजीशन फिर से आगे नॉर्थ टू नॉर्थ, कंप्लीट 360, आगे कंप्लीट 360 का रोटेशन। सो कंप्लीट रोटेशन इज ऑफ 360। सेम एंटी क्लॉकवाइज 45। सो सेम अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा आपका 45, ये आ जाएगा आपका 90, इट विल गिव 135, इट विल बिकम 180, देन 225, देन 270, then 315 and finally 360। so clockwise and anti clockwise ये दोनों मूवमेंट समझना इंपॉर्टेंट है इन द डायरेक्शन सेंस। क्लियर? डायरेक्शंस एंड मूवमेंट्स, इसके बेसिक्स तो हम ऑलरेडी देख चुके, अभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल 1। चलो, a man started walking towards west। so before we are going to solve this, we need to draft, yes, main directions। so main directions, right east, left west, down south, up north, and we always imagine person where? Apkus, in the center। so यहाँ पे हमने imagine कर लिया। a man started walking towards west। so if he is walking towards west, so he is already facing towards west, correct है? so man started walking towards west, man started walking towards west, he turned right, right means clockwise, right means clockwise, clear?
then right again, once again clockwise, once again clockwise. Okay, and finally turn left. Finally turn left. Left means anti-clockwise. And what is the question asked? Towards which direction was he walking finally? अभी finally कौन से direction में जा रहा है? Yes, north. So finally the person is walking towards north. Once you understood the original position से आपको moments दिखानी, at the time of drafting the moments you have to just think if it is a right turn then it is a clockwise, it is left turn it is anti-clockwise. Understood? Example number 2, रमेश is facing east. Okay, सबसे पहले रमेश के position, रमेश is facing towards east. So now Ramesh is facing towards east. Ramesh is facing towards east. Agree? He turns to his left. Left means anti-clockwise. Left means anti-clockwise. Clear है? He turns to his left through right angle. Right angle मतलब 90 degree. So anti-clockwise. Anti-clockwise 90 degree. Clear है? Then which direction is at his back? If he is facing the north, so back में कौन सी आएगी? South. Exactly opposite direction हम choose करेंगे. So he is facing towards north. That's why back में आएगी south. Question क्या पूछा है? बारीकी से पढ़ो. He turns to his left. So left turn ले लिया right angle में. Which direction is at his back? Facing नहीं पूछी. He is facing towards north. That's why back में आएगी south. Understood? अंकिता इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट. सेम अंकिता की पोजीशन हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे. अंकिता इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट. अंकिता इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट. अंकिता इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट. शी टर्न्स टू हर लेफ्ट. शी टर्न्स टू हर लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज. यस. थ्रू राइट एंगल मतलब वन एंड द सेम 90 डिग्री. सो 90 डिग्री राइट एंगल. ओके. Then which direction is to her left? So ये इसकी right है, ये इसकी left है. So left में कौन सी direction है? West. So left में direction कौन सी आ रही है? West. उन्होंने क्या पूछा है? पिछले क्वेश्चन में back पूछी थी. अभी if she is turning towards, she is facing towards north. अगर हम north में face करते, आपकी जो position है at the time of solving or at the time of watching the video, so same position है. So आपकी right है east और आपकी left है west और left वाली पूछी है west. Clear? सलमा is facing towards west. सलमा की पोजीशन है facing towards west. facing towards west. सब डायरेक्शंस दिए, क्वाड्रिलैटरल डायरेक्शंस दी, इसलिए हमने क्वाड्रिलैटरल डायरेक्शंस भी यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है. सलमा इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट. चलो ओरिजिनल पोजीशन दिखा दी. शी टर्न्स थ्रू 45 डिग्री टू द राइट साइड. राइट साइड मींस क्लॉकवाइज. करेक्ट. सो कितना? 45 डिग्री क्लॉकवाइज. 45 डिग्री क्लॉकवाइज. विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग? यस, नॉर्थ वेस्ट. शी इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन से शी इज टर्निंग जस्ट राइट. सो नाउ शी इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट. क्लियर? सुरभि इज फेसिंग ईस्ट. सुरभि इज फेसिंग ईस्ट. आप बोलोगे सर हम तो वैसे पर्सन वाले डायग्राम नहीं निकाल सकते, सो वी विल गो विथ अ डॉट. Normally during the exam whenever you are making a drawing of this direction, original position पे सिर्फ एक डॉट लगा दो. सुरभि is facing east. सुरभि is facing east. Clear? सुरभि is facing east. She turns 100 degree in the clockwise. सबसे पहले समझ लो clockwise movement कितनी है? 100. Then 145 anti-clockwise. So anti-clockwise minus clockwise कौन सा ज्यादा एंगल है? एंटी क्लॉकवाइज. सो 145 माइनस 100 इट मीन शॉर्टकट में बोले तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्टली ये शॉर्टकट है. 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. यहां से इफ शी इज टर्निंग 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सो शी इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट.
She is facing towards northeast. She turns 100 degree in the clockwise. चलो, she turns 100 degree in the clockwise. So 100 degree यहाँ पे आ गई. Again she turns 145. So यहाँ से 145 तो ये 100 है और ये 45 आ गई सेम पोजीशन 145 पे, वन एंड द सेम. सो मैंने क्या किया, 145 माइनस 100, सो 45 एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नंबर बड़ा है और क्लॉकवाइज नंबर छोटा है. सो जो नंबर बड़ा उसमें से छोटा नंबर हटा लो. बड़ा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आंसर का जो भी बचेगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करो. अगर बड़ा क्लॉकवाइज होता, समझो 145 क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज होता, तो हम उसको 45 डिग्री इधर घुमाते और आंसर आ जाता हमारा साउथ ईस्ट. गेटिंग इट? शॉर्ट डिस्टेंस. अभी शॉर्ट डिस्टेंस सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. पाइथागोरस थ्योरम लगेगा हमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. ए बी सी. सो ए बी को क्या कहा जाता है? यस, ए बी इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर. ए बी इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर. बी एंड सी इज कॉल्ड एज बेस. बी एंड सी इज कॉल्ड एज बेस. और हमें जो शॉर्टकट डिस्टेंस निकालना है ए टू सी, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज. दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज. सो हमें कैलकुलेशन करना है हाइपोटेन्यूज का ए टू सी. सो आपको क्या दिया जाएगा? सम पर्सन इज मूविंग फ्रॉम ए पोजिशन टू बी पोजिशन, again from B position to C position. So now what is the distance between the original position and now the present position? So this is the shortcut way. और शॉर्टकट वे के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना जरूरी. क्या है फॉर्मूला? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरह से निकालते हैं, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इसका मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, whatever answer comes, that is our shortest distance. अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है. एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगी. काव्या वॉक्स नॉर्थ ईस्ट. सबसे पहले निकाल लेते हैं हम हमारी डायरेक्शंस वाला ग्राफ. काव्या वॉक्स नॉर्थवर्ड अप टू 10 मीटर. सो काव्या की ओरिजिनल पोजीशन दिखा दू इन द सेंटर. यस, काव्या नॉर्थवर्ड जा रही है, नॉर्थ की तरफ 10 मीटर. नॉर्थ की तरफ 10 मीटर, यहां तक तो एग्री है आप? वेरी गुड. शी टर्न्स लेफ्ट. लेफ्ट मीन्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? यस, एंटी क्लॉकवाइज. शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर. शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर. एग्री? फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, अगेन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर. Again left मतलब anti clockwise, walks 50 meter. At what distance Kavya is now from her starting position? So उसकी starting position ये है. So हमें starting position A से लेके ये position shortcut निकालना है. So we want A to C. We want A to C. So A to C से पहले समझ लो, हमें बेस तो मिल गया. बेस कितने का है? यस, 30 का है. लाइक 50 माइनस 10 इसका मतलब परपेंडिकुलर है 40 का. ये समझ लो, बेस से ये 10 माइनस किया, दैट इज रीजन परपेंडिकुलर है हमारा 40 मीटर का और बेस है हमारा 30 मीटर का. क्लियर? डालो फॉर्मूला. AC इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर. सो 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर. सो 3 का स्क्वायर क्या है? 9. सो 30 का स्क्वायर 900. 4 का स्क्वायर है 16, सो इसका मतलब 1600. सो 900 प्लस 1600, 16 प्लस 9 2500. क्लियर है? 2 जीरो हटा दो, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का. सो इसका मतलब 50. करेक्ट है? अगर ये पाई का है तो 2 जीरो, इसका मतलब 50. सो AC शॉर्टकट डिस्टेंस कितना आ रहा है? 50 मीटर्स. शॉर्टकट डिस्टेंस कितना आ रहा है? 50 meters. Getting it? Once again, don't worry. काव्या नॉर्थ की तरफ 10 मीटर जा रही है. क्लियर है? देन शी टेक्स द लेफ्ट टर्न. सो लेफ्ट टर्न 30 meters. So left turn she is going 30 meters. Agree? Again left 50 meters.
अगेन लेफ्ट 50 मीटर्स। और यहाँ पे पूछा है अभी ओरिजिनल पोजीशन, ये पोजीशन, ये शॉर्टकट डिस्टेंस हम निकालना है, ये शॉर्टकट डिस्टेंस हमें निकालना है। सो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर निकालते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट ये 10 है तो पक्का ये भी 10 होगा, एग्री। ये 10 है, सो 15, 50 माइनस 10, सो ये 40 बन गया, एग्री, करेक्ट है। अगर ये 30 है तो ये बेस लाइन भी 30 होगी, सो ये 30 है। सो हमें ए बी और बी सी दोनों मिल गए और ए सी करना है, बस फॉर्मूला में डाल दिया, ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर, ए बी कितनी है अपने 30 और बी सी कितनी है 40, सो 900 प्लस 1600 2500, अंडर रूट 2500 है तो अंडर रूट निकाल लो 50। सो शॉर्टकट डिस्टेंस है 50 मीटर, शॉर्टकट डिस्टेंस है 50 मीटर फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन टू दिस न्यू पोजीशन। सो ये आंसर हमने निकाल लिया 50 मीटर्स। गेटिंग इट? कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो। चलो, whenever question will be asked, in the question whether sunrise time is given or sunset time is given, try to understand. So ये है हमारा सनराइज, ये है हमारा सनसेट, क्लियर है। ये है हमारा साउथ, ये हमारा नॉर्थ, ये तो पक्का है। सपोज नाउ द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। सपोज ये टाइम अगर सनराइज का है तो इसकी शैडो इधर आएगी वेस्ट में, एग्री। सो इफ इट इज अ सनराइज टाइम, इफ इट इज अ सनराइज टाइम तो शैडो कहां पे जाएगी, ईस्ट है तो शैडो वेस्ट में जाएगी। सो वेस्ट में जाएगी तो इसकी कौन सी एंगल में जा रही, यस, टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस पर्सन, टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस पर्सन, राइट और लेफ्ट, क्लियर है। इफ द पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, अगर ये नॉर्थ फेसिंग होता तो लेफ्ट में शैडो चली जाती, क्लियर है। और सनसेट का टाइम अगर दिया तो सनसेट का टाइम दिया तो शैडो कहां पे जाती, ईस्ट में चली जाती, सो लेफ्ट में चली जाती, क्लियर है। सो सनराइज और सनसेट दोनों के बारे में, अगर वेस्ट में सन है तो शैडो ईस्ट में जाएगी, ईस्ट की तरफ सन है तो शैडो वेस्ट में जाएगी। ये कब पॉसिबल है, आप बोलोगे सर ये पॉसिबल है अगर सन की पोजीशन हॉराइजन के बिल्कुल अबव है, होराइजन के अबव, तो व्हेन द पोजीशन ऑफ द सन इज अबव द होराइजन, दैट टाइम द शैडो इज लॉन्गर, हमारी शैडो हमारी हाइट से कई गुना ज्यादा होती है, बिकॉज द सन इज अबव द होराइजन। सो ये शुरू में भी हो सकता है, जब सनराइज हो रहा है द सन इज अबव द होराइजन, तभी भी ये वेस्ट की तरफ है शैडो लंबी जाएगी, और सनसेट के बाद भी अगर वो अबव, सनसेट के पहले भी अगर हो तो शैडो लंबी जाएगी। सो कीप इन माइंड व्हेन द पोजीशन ऑफ द सन इज अबव द होराइजन, डिस्टेंस ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो इज हायर देन आवर नॉर्मल हाइट, क्लियर है। एंगल ऑफ द सन अबव द होराइजन, एंगल ऑफ द सन अबव द होराइजन, जीरो शैडो, कब है जीरो शैडो, यस एग्जैक्टली इफ द पोजीशन ऑफ द सन इज एग्जैक्टली अबाउ द हेड, सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, इट मींस देयर इज अ नो शैडो, क्लियर। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, टू फ्रेंड्स रौनक एंड अंकित वर टॉकिंग टू ईच अदर। चलो निकाल ही लेते हैं हम। वन इवनिंग, वन इवनिंग इसका मतलब सनसेट वाला वक्त है। वन इवनिंग रौनक, टू फ्रेंड्स रौनक एंड अंकित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ रौनक शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, रौनक शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट। सबसे पहले मुझे बता दो, अगर सनसेट ये है तो शैडो कहां पे जाएगी, शैडो तो इधर जाएगी, एग्री। सो रौनक की शैडो लेफ्ट में जा रही, सो रौनक का ये लेफ्ट है तो रौनक का ये राइट अगर है, सो रौनक इज फेसिंग साउथ, एग्री। रौनक इज फेसिंग साउथ, रौनक इज फेसिंग साउथ, बोथ आर फेसिंग ईच अदर, सो इसका मतलब अनिक इज फेसिंग नॉर्थ। इफ रौनक शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, then which direction was Anik facing? So Anik facing towards north, Anik facing towards north, got it?
क्योंकि शैडो की पोजीशन फिक्स है। एट सनराइज विच डायरेक्शन विल द शैडो ऑफ अ ट्री पॉइंट? सनराइज इसका मतलब सन इधर है, सन इधर है तो ट्री की शैडो वेस्ट में जाएगी, सिंपल है। सो ये तो फिफ्थ स्कॉलरशिप वाला क्वेश्चन है। इफ अ पर्सन शैडो एट सनराइज इज ट्वाइस देयर हाइट and points directly west, which factor primarily influence this shadow length? If a person's shadow at sunrise is twice, इसका मतलब the angle of the sun above the horizon. When shadow is double the height, इसका मतलब पोजीशन जो है सन की above the horizon. If a flagpole casts no shadow at a particular location, no shadow, no shadow means sun is overhead. The sun is directly overhead. The sun is directly overhead. Theoretical question है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। 5 to 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। फाइनल डायरेक्शन केस नंबर 1। सो अब तक हम सिर्फ बेस कंप्लीट कर रहे थे, अभी हम केस डिस्कस करते हैं। सार्थक स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस। चलो सबसे पहले डायरेक्शन सो निकाल लेते हैं। सार्थक को इमेजिन कर लिया हमने इस पोजीशन में। सार्थक स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, सो इसका मतलब ये इसका हाउस है। एंड वॉक्स वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड की तरफ जा रहा है। वॉक्स वेस्टवर्ड, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देन राइट टर्न, मतलब क्लॉकवाइज। बिफोर ईच टर्न ही वॉक्स 3 किलोमीटर। In which direction is he walking now? He is walking towards west. वेस्ट की तरफ ही जा रहा है। वेस्ट से निकला था, पहले एक टर्न ले लिया, बाद में और एक टर्न ले, सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, जहां पे पहले जा रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहा है। सो जस्ट यू नीड टू ड्रॉ दीज एरोज। एरोज जिसको ड्रॉ करने आ गए, डायरेक्शन समझ में आ गई। पुष्कर इज फेसिंग साउथ। चलो, पुष्कर इज फेसिंग साउथ। सो पुष्कर की पोजीशन साउथ में हम सबसे पहले दिखा देते। पुष्कर इज फेसिंग साउथ। पुष्कर इज फेसिंग साउथ। ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ए 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज। सो कौन सी डायरेक्शन बड़ी है? यस, आप बोलोगे सर 180 डिग्री बड़ी है। सो क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। सो 180 माइनस 35, यस 45। कौन से डायरेक्शन में जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45। क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45। सो कौन से डायरेक्शन की टुवर्ड फेस करेगा? साउथ वेस्ट। दोनों का डिफरेंस निकाल के जो भी बड़ा है, सो 180 डिग्री क्लॉकवाइज था, सो उसको हमने मूव कर दिया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। सो आंसर आ गया हमारा साउथ वेस्ट। क्लियर? A person walks toward his house at 8 a.m. ओके, 8 a.m. इसका मतलब सनराइज का वक्त है, करेक्ट है। अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड हिज हाउस एट 8 a.m. एंड ऑब्जर्व हिज शैडो टू हिज राइट। सो शैडो यहां पे जाएगी, ये तो एग्री है, करेक्ट है। हाँ, सो ये इसका राइट है, सो इसका मतलब ये इसका लेफ्ट है। सो ये राइट है, ये लेफ्ट है, सो इसका मतलब वो सामने देख रहा है, मतलब साउथ की तरफ देख रहा है। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग? ऑफकोर्स ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। इफ यू इमेजिन डायरेक्शंस, डायरेक्शन समझना बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको ये प्लॉट करना आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ। ओके, पहले समझ लेते हैं। इफ साउथ वेस्ट, इफ साउथ वेस्ट becomes north, southwest becomes north, 45 45 45 मतलब 135। कौन सी है? क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, सो दोनों को कनेक्ट करो, 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाइए। देन नॉर्थ ईस्ट बी, देन नॉर्थ ईस्ट बी, देन नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ भी घुमा दो 135, साउथ में आएगा। यस,
ये क्लॉकवाइज 135 तो ये भी क्लॉकवाइज 135 आएगा. सो नॉर्थ ईस्ट विल बिकम साउथ. नॉर्थ ईस्ट विल बिकम साउथ. गॉट इट. ओमकार इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट. ओमकार is facing northwest. Omkar is facing northwest. He turns to the left. Left मतलब एंटी क्लॉकवाइज. सो इधर कितने डिग्री में? 90 डिग्री में. सो 90 डिग्री मतलब आपको टुवर्ड्स दिस पोजीशन. विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? ही इज फेसिंग साउथ वेस्ट. मार्क नहीं किया? ओके. ही इज फेसिंग साउथ वेस्ट. सिर्फ मूवमेंट समझ रही, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था. राइट मूवमेंट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मूवमेंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज. फाइंड द सब डायरेक्शंस बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. फाइंड द सब डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. सो नॉर्थ वेस्ट. If you stand facing toward this direction, if you stand facing toward this direction, which direction is at the back? So back में south east जाएगी. कॉमन सेंस है. इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, सो बैक में साउथ ईस्ट है. साउथ ईस्ट फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर. डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक डिस्टेंस है में दूसरा डिस्टेंस समझना है. गणेश गोज 10 किलोमीटर वेस्ट. सो गणेश की पोजीशन हमने इमेजिन कर ली यहाँ पे. गणेश गोज 10 किलोमीटर वेस्ट. सो 10 किलोमीटर वेस्ट में इसको हम लेके आए. देन ही टर्न्स लेफ्ट. लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और कितना जा रहा है? 16 किलोमीटर्स. 16 किलोमीटर्स. देन ही टर्न्स राइट. राइट मतलब फिर से क्लॉकवाइज. कितना? 10 किलोमीटर. देन अगेन टर्न्स राइट मतलब फिर से क्लॉकवाइज, और कितना जा रहा है? 16 किलोमीटर. एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? भाई साहब का स्टार्टिंग पॉइंट ये है. सो ये 10 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर मतलब 20. यस, इतना डिस्टेंस निकालना है. सो 10 प्लस 10 20 किलोमीटर्स. गॉट इट. फील्ड इज 2 किलोमीटर अवे. सो शुरुआत तो हम यही से करेंगे, नो डाउट यार. फील्ड इज 2 किलोमीटर अवे एंड टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम होम. सो शुरुआत होम से है. सो हमने सेंटर में दिखा दिया होम. सो फील्ड इज 2 किलोमीटर अवे एंड टूवर्ड द ईस्ट. सो फील्ड ईस्ट की तरफ कितना? 2 किलोमीटर्स. सो 2 किलोमीटर्स पे हमने फील्ड दिखा दिया. सो ये होम है, ये फील्ड है. उसके बाद टेम्पल इज 3 किलोमीटर एंड इन द नॉर्थ. सो नॉर्थ की तरफ टेम्पल है. कितना? 3 किलोमीटर्स. कॉलेज है 2 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. सो टेम्पल से वेस्ट की तरफ कॉलेज. सो वेस्ट की तरफ कॉलेज कितना? 2 किलोमीटर्स. क्लियर. वंस अगेन, डोंट वरी. फील्ड 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द होम. होम से ईस्ट 2 किलोमीटर पे है. क्लियर. ईस्ट से मतलब फील्ड से टुवर्ड्स द नॉर्थ टेम्पल है 3 किलोमीटर पर. टेम्पल से वेस्ट की तरफ कॉलेज है 2 किलोमीटर पे. सवाल क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉलेज एंड होम. कॉलेज एंड होम सो सेम डिस्टेंस है, इसी को डिस्प्लेसमेंट का है. सो 3 किलोमीटर्स. आंसर इज 3 किलोमीटर्स. सेम डिस्टेंस निकल रहा है. सो ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा. 3 किलोमीटर्स. क्लियर. आप अभी इतना दिमाग ज्यादा ना लगाओ सर यहाँ पे रास्ता है या नहीं है. गडकरी साहब ने हर जगह पे रास्ते करके रखे. सो यू हैव टू ऑलवेज इमेजिन इन अ क्वेश्चन दैट देयर इज अ रोड. देयर इज अ रोड. एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या है. श्रावणी वॉक्स. चलो श्रावणी की ओरिजिनल पोजीशन तो दिखा देते हैं. श्रावणी वॉक्स 10 स्टेप्स टुवर्ड्स ईस्ट. सो ईस्ट की तरफ 10 जा रही है. एग्री. फर्दर शी टर्न्स टुवर्ड्स साउथ. वो साउथ की तरफ टर्न हो रही है. इसका मतलब वो राइट टर्न ले रही है क्लॉकवाइज. और कितने स्टेप जा रही है? 15 स्टेप्स. अगेन शी वॉक्स 5 स्टेप्स टुवर्ड्स वेस्ट. फिर से वेस्ट में वो 5 स्टेप्स चल रही है. एंड लास्ट वॉक्स 15 स्टेप्स टुवर्ड्स नॉर्थ. फिर से 15 स्टेप्स नॉर्थ की तरफ जा रही है.
क्लियर? सो अभी आप बोलोगे कि सवाल क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टेप्स इज शी फार फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस। सो ओरिजिनल पोजीशन उसकी ये है, सो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। सो आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये पूरा 10 है, सो ये बचा हुआ 5 है, सो 10 माइनस 5 ये निकालना है ना। सो 10 माइनस 5 दैट इज 5, 10 माइनस 5, सो आंसर इज 5। सिर्फ 5 स्टेप्स का डिस्टेंस है ओरिजिनल पोजीशन से। सार्थ वेंट, सार्थ की पोजीशन, सार्थ वेंट 16 किलोमीटर्स टू द वेस्ट, सो वेस्ट की तरफ 16 किलोमीटर्स, देन 13.5 किलोमीटर टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कितना, 13.5, अगेन 8.5 टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ फिर से 8.5, करेक्ट है, 8.5, 8.5 किलोमीटर टू द ईस्ट, फाइनली 13.5 टुवर्ड्स द साउथ, फिर से 13.5 टुवर्ड्स द साउथ। क्लियर? अभी क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। सो कैसे निकालोगे, 16 माइनस 8.5, सो आंसर इज 7.5। 16 किलोमीटर ये टोटल है, 8.5 ये 8.5 तो ये भी 8.5, ये 8.5 माइनस करके आंसर आ रहा है 7.5। क्लियर? 7.5 किलोमीटर्स। विजय वॉक 30 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, सो विजय की पोजीशन है वॉक्स टुवर्ड्स साउथ, कितने मीटर पे, 30 मीटर पे, टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15, सो लेफ्ट में जा रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उधर जाएगा, सो 15 मीटर, करेक्ट है। ही देन टुक अ राइट टर्न, फिर से राइट जा रहा है 20 मीटर, ही अगेन टुक अ राइट टर्न, फिर से राइट टर्न ले रहा है, इसका मतलब 15 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये 30, ये 20, इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस निकालना है। सो 30 प्लस 20 50 मीटर्स, 30 प्लस 20 50 मीटर्स। सो राइट लेफ्ट समझ में आ गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सो आंसर आसान है। चलो शुरुआत करते केस नंबर 3, बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। सो डिस्टेंस भी निकालना है और डायरेक्शन भी ढूंढनी है। एग्जांपल देख लेते हैं, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, सो राम की पोजीशन फेसिंग टुवर्ड्स साउथ है। फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, राम स्टार्टेड वॉकिंग एंड ओके, राम स्टार्टेड वॉकिंग एंड टर्न लेफ्ट आफ्टर 30 मीटर, सो 30 मीटर के बाद वो टर्न ले रहा है, 30 मीटर, इसका मतलब 30 मीटर वो साउथ की तरफ चला गया। ही वॉक 25, कौन सा टर्न लिया उसने, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, चलो कितना, 25 मीटर्स। उसके बाद और लेफ्ट है और 30 मीटर और एंटी क्लॉकवाइज 30 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन एंड इन विच डायरेक्शन, सो ओरिजिनल पोजीशन से वो फिर से 25 पे है और अभी वो खड़ा है ईस्ट में, फेसिंग नहीं दिया है, वो भी कौन से डायरेक्शन में, सो ईस्ट डायरेक्शन में। सो व्हाट इज आंसर, 25 मीटर ईस्ट, सो ये 25 मीटर है और वो ईस्ट में है। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, रीचा वॉक्ड 3 मीटर साउथ। ओके, सो रीचा की पोजीशन ये है, स्टार्टिंग फ्रॉम ये, सो ये ए पोजीशन है, शी वॉक टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ वो जा रही है, कितना जा रही है, 3 मीटर, देन शी टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सो लेफ्ट में जा रही है, कितना, 4 मीटर। हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, वेरी गुड। क्या है हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 9 प्लस 16, अंडर रूट 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, सो आंसर इज 5, आंसर इज 5 मीटर, आंसर इज 5 मीटर। और इन विच डायरेक्शन, आंसर 5 है लेकिन कौन से डायरेक्शन में जा रही है, सो हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन, सो ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में अभी हो,
यस, ईस्ट में है या साउथ में है या बीच में ही है? यस, शी इज बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट। शी इज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, क्योंकि एग्जैक्टली मिडल वाली पोजीशन, सो ये पोजीशन हो गई आपकी साउथ ईस्ट। सो शी इज 5 मीटर साउथ ईस्ट। क्लियर? ओके, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ये इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। ऑन अ प्लेग्राउंड, समझ लो कितने लोग हैं। विशाल, कौस्तुभ, सार्थक, श्रीराम एंड पुष्कर, 5 persons are there standing and describe below facing north, all are facing north। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्ल्यू तो हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ऊपर वाले डायरेक्शन निकाल लेते ना। ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स, कौस्तुभ इज 40 मीटर, सब सब ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब हमारा जो राइट है उनका राइट है, हमारा जो लेफ्ट है उनका लेफ्ट है। सो इसका मतलब ये राइट पोजीशन है, लेफ्ट पोजीशन पहले ही हमने क्लियर कर दिया, राइट और लेफ्ट। क्लियर है? कौस्तुभ इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ द श्रीराम। सो सबसे पहले पोजीशन कौस्तुभ के, सो कौस्तुभ को मान चलते हैं, कौस्तुभ यहाँ पे है। कौस्तुभ इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ द श्रीराम। सो श्रीराम के राइट में है वो, इसका मतलब श्रीराम कहीं पे यहाँ पे होगा 40 मीटर्स पे। सो श्रीराम की पोजीशन ये है 40 मीटर्स पे। क्लियर है? पहली लाइन। विशाल इज 60 मीटर टू द साउथ। विशाल जो है कौस्तुभ के साउथ में 60 मीटर, सो ये विशाल आ गया 60 मीटर्स पे। सार्थक इज 25 मीटर टू द वेस्ट ऑफ द श्रीराम। श्रीराम की वेस्ट ये है, सो सार्थक यहाँ पे कितने मीटर्स पे? सार्थक 25 मीटर्स पे। क्लियर है? पुष्कर इज 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ द विशाल। सो विशाल के नॉर्थ है, सो विशाल से लेके यहां तक ओ 90 पे है, विशाल से लेके यहां तक ओ 90 पे। सो इसका मतलब कौस्तुभ से वो 30 पे होगा। सो ये टोटल 90 पे, सो 90 60। सो कौस्तुभ और पुष्कर अगर सवाल पूछे जाते तो आपको डेफिनेटली उनके बीच में 30 मीटर का डिस्टेंस है। ये पोजीशंस आ गई ध्यान में। अभी इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन मैंने एज इट इज ले ली। हु इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज लेफ्ट टू द कौस्तुभ। कौस्तुभ का ये राइट है, लेफ्ट है, सो कौस्तुभ के लेफ्ट में कौन है? श्रीराम। सबसे पहले समझ लो कि क्वेश्चन क्या पूछा है। हु इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज लेफ्ट टू द कौस्तुभ। कौस्तुभ के लेफ्ट श्रीराम पे, श्रीराम के नॉर्थ ईस्ट में कौन है? श्रीराम के नॉर्थ ईस्ट में। so यहां से अगर आप जाते हो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट इधर है, सो श्रीराम के नॉर्थ ईस्ट में पुष्कर है। श्रीराम के नॉर्थ ईस्ट में पुष्कर है। सो नन ऑफ दीज, नॉर्थ ईस्ट उन्होंने पूछा है, सो नॉर्थ ईस्ट पे पुष्कर है, पुष्कर का नाम नहीं है। सो नन ऑफ दीज। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सेम डिस्क्रिप्शन लगने वाला है। इफ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम सार्थक एंड मीट्स श्रीराम, अ बॉय वॉक्स फ्रॉम सार्थक एंड मीट्स श्रीराम, followed by Kaustubh, followed by Kaustubh. Then Vishal and Pushkar, then Vishal, and then Pushkar. If he has traveled straight distance, अगर वो straight distance जा रहा है 100, 190, 190 के बाद 100, 250, yes, 100, 190, 215 मीटर स्ट्रेट डिस्टेंस। सभी डिस्टेंस का कैलकुलेशन करके आंसर इज 215 मीटर। गॉट इट? स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट हमारा हमेशा यही पे होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, राजू वॉक 15 मीटर, 12 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो 12 मीटर जा रहा है। देन ही टर्न राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, एंड वॉक 10 मीटर, सो 10 मीटर। अगेन टर्न, ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 12, अगेन राइट है मतलब फिर से क्लॉकवाइज है और फिर से जा रहा है 12 मीटर। देन ही टर्न लेफ्ट, देन ही टर्न लेफ्ट, सो लेफ्ट मतलब उधर जा रहा है कितना? 5 मीटर। हाउ फार इज ही नाउ एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग
पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप देखते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है 10 + 5 15, 10 + 5 15 मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट, 15 मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट। सो ये 10 और ये 5, ये 10 और ये 5 15 मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट, 15 मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट। गेटिंग इट? सो ये रहे हमारे डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस। डायरेक्शन सेंस यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।